Hello students, today I will discuss electric field due to electric dipole at any point P. This case is different than the case which we discussed in previous lecture, the electric field due to electric dipole on axial line and equatorial line. Because in this case we consider the point at any other position, not on the axial line or equatorial line. So let's start. Let us consider dipole placed in xyz axis in which the dipole's negative charge is located at origin O. Here we consider the charge minus q located at origin O and the positive charge of the electric dipole is located at point A, and this dipole, in this dipole the charges is at distance 12. It means this is a separation between the two charges, and we consider point P, which where we want to find the electric field at any point P. We consider point P which is at position vector from this origin R vector. So therefore this AP will be R vector minus 12 vector. So this is the case. So the electric field intensity due to minus q charge at point P will be electric field intensity at point P due to charge minus q at O is, that will be equal to EO vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus q by R vector mod q into R vector. Similarly, अब हम क्या करेंगे? We will find the electric field intensity due to this charge plus q at point P. Electric field intensity at point P due to charge plus q at A is, that will be equal to EA vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q अपॉन, अब देखो जो ये A पॉइंट है वो P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R वेक्टर माइनस 12 वेक्टर. तो दैट्स वाई जो यहाँ पर आएगा दैट विल बी R वेक्टर माइनस 12 वेक्टर मोड का क्यूब और R वेक्टर माइनस 12 वेक्टर. फॉर दिस क्वेश्चन 1, दिस क्वेश्चन 2. ओके. So the resultant electric field is E vector is equal to EA vector plus E naught vector. Now substitute the value of EA vector and E naught vector in this equation. So we get E vector is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R vector minus 12 vector upon R vector minus 12 vector mod cube minus R vector mod cube. This is the equation after putting the value of EA vector and E naught vector. Okay, now अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है. To solve this question, in the denominator of first term we multiply the power with the 2 and divide by 2. So this question becomes, this term will remain same as that of above question, and here we multiply by 2 and divide by 2, and this term will be remain same as that of above. ये क्वेश्चन आ जाएगी. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए स्क्वेयर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी. तो आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर माइनस 12 वेक्टर. इसको ध्यान से देखो स्टेप को, आ जाएगा आर स्क्वेयर
प्लस 4l² माइनस 4r वेक्टर डॉट l वेक्टर की पावर 3/2, क्योंकि हमने इस स्क्वेयर को सॉल्व किया है और 3/2 अभी हमने इसको सॉल्व करना है और ये टर्म ऐसे चली जाएगी r वेक्टर अपॉन r वेक्टर मॉड q। ओके, क्लियर। सो अब क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इस r² को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, q अपॉन 4πε0, न्यूमरेटर ऐसा रहेगा। यहाँ से हमने r² कॉमन निकालेंगे, जब ये r² बाहर आएगा उसकी जो पावर है वो 3/2 उसके ऊपर आ जाएगी। तो वो क्या करेगा, 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, तो r की पावर ऊपर क्या आ जाएगी, r3, और अंदर बच जाएगा मेरा 1 प्लस 4l² बाय r² माइनस 4r वेक्टर डॉट l वेक्टर ओवर r², इसकी पावर 3/2। ये टर्म ऐसा चले जाएगी। ओके, अब जो हमने r² कॉमन निकाला, उसके बाद निकालने के बाद जो मेरी इक्वेशन है वो ये बनी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस r³ को बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा q अपॉन 4πε0 r³, अंदर बचेगा r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर अपॉन, अंदर ये बचेगा 1 प्लस 4l² ओवर r² माइनस 4r वेक्टर डॉट l वेक्टर अपॉन r² की पावर 3/2 माइनस r वेक्टर, क्योंकि r वेक्टर मोड का जो होगा रिजल्टेंट वो r³ होगा, तो वो भी बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर मेरा डायपोल शॉर्ट है, इफ डायपोल इज शॉर्ट, इसका मतलब है अगर जो L की वैल्यू है, जो साइज है उसका डायपोल का, वो जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर वो उस पॉइंट से के कंपेरेबल वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दिस l² ओवर r² टर्म वाली टर्म को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इट कैन बी निगलेक्टेड। तो देयरफॉर ये जो टर्म है ये निगलेक्ट हो जाएगी, तो मेरा बचेगा आखिर में क्या बचा इसके बाद, ए वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 r³ r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर। अब क्योंकि ये हमने खत्म कर दी तो बचा क्या, 1 प्लस माइनस 4r वेक्टर डॉट l वेक्टर अपॉन r² की पावर 3/2 माइनस r वेक्टर। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। अब जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम क्या लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसको हम ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, q अपॉन 4πε0 r³, ये इसकी क्या हो जाएगी, पावर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये ऐसे ले सकते हैं, r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर 1 माइनस 4r वेक्टर डॉट l वेक्टर ओवर r², इसकी पावर आ जाएगी माइनस 3/2, क्योंकि इसका हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल ले लिया डिनोमिनेटर का, और ये टर्म एज सच माइनस r वेक्टर। ओके, क्लियर हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये मेरी जो टर्म आई है, r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर इंटू 1 माइनस 4r वेक्टर डॉट l वेक्टर अपॉन r² की पावर माइनस 3/2। तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, वी विल यूज बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन थ्योरम। तो व्हेन वी अप्लाइड बाइनोमियल थ्योरम ऑन दिस टर्म, वी गेट दिस टर्म, हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, इसके ऊपर अप्लाई करो बाइनोमियल थ्योरम। व्हेन वी अप्लाइड बाइनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी, नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, तो वी गेट E वेक्टर इक्वल टू q अपॉन 4πε0 r³, ये तो ऐसा रहेगा, r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर भी ऐसा रहेगा। अब हम क्या करें, इसके ऊपर अप्लाई करें बाइनोमियल थ्योरम, और जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम इसके अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हाई ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डायपोल है शॉर्ट है, और जो L
और आर की वैल्यू है और बड़ी होती जाएगी। तो क्योंकि ये वैल्यू है वो बड़ी होती जाएगी, तो दैट्स वाई ये जो टर्म है एज कम्पेयर टू 1 और छोटी होती जाएगी। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आफ्टर निगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स वी गेट 1 प्लस 3/2 4 r वेक्टर डॉट l वेक्टर अपॉन r स्क्वेयर माइनस r वेक्टर, ये आ जाएगा। सो देयरफॉर यहां से 2 को हमने 4 से काटा तो क्या बन गया, अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 पाई नॉट आर क्यूब r वेक्टर माइनस 12 वेक्टर 1 प्लस 3 2 का 6 r वेक्टर डॉट l वेक्टर अपॉन r स्क्वेयर माइनस r वेक्टर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आर को करेंगे सभी के साथ 1 प्लस 6 आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर बाई आर के साथ, और माइनस 12 को करेंगे इन दोनों के साथ। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी टर्म बनेगी क्या आएगी, ये सच। जब आर को करेंगे आ जाएगा आर वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ये वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा अपॉन आर स्क्वेयर। अब हमने पहले आर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम 12 को करेंगे माइनस 12 वेक्टर माइनस 12 आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर इंटू एल वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस आर वेक्टर, ये मेरी ऐसा चलेगी। अब बिकॉज मेरा डायपोल शॉर्ट है तो एल बाय दिस ये टर्म क्या हो जाएगी, ये एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर बन जाएगा। तो दैट्स वाई हम इस टर्म को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो डायपोल क्या शॉर्ट है, एल क्या है, इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो देयरफॉर एल स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर जो टर्म है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हम ये लिख देंगे कैन बी निगलेक्टेड। जब उसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी क्या बचेगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 12 वेक्टर। अब इसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ये अब इस टर्म में नहीं आएगी, तो दैट्स वाई हमारा बचेगा आखिर में माइनस आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर और आर वेक्टर आपस में निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपस में निगलेक्ट हो गया। तो आखिर में हमारे पास क्या इक्वेशन बची, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब जो अंदर बचा हुआ लिख दो 6 इंटू आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस दैट इज 12 वेक्टर, ये आ गया। अब अपने पास इसकी क्या करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है। हमारा ऑलमोस्ट जो है रिजल्ट आ चुका है। क्या करेंगे, जो आप क्यू ओवर आर क्यू को अंदर ले जाएंगे, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 क्यू इंटू आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर 5, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है यहाँ स्क्वेयर है, तो 3 + 2 क्या 5 हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू 2l वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब इस टर्म को हम ऐसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू आर वेक्टर डॉट क्यू इंटू 2l वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 5 माइनस क्यू इंटू 12 अपॉन आर क्यूब। अब हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो रिजल्ट है वो इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करना है। एंड वी नो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। So therefore this question can be written as, since P वेक्टर क्या होगा, that is Q into 2l वेक्टर, तो यहाँ पर Q into 2l वेक्टर उसकी जगह क्या आ जाएगा P वेक्टर। तो
तो एट लास्ट हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 3 इंटू आर डॉट पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन R5 माइनस P vector upon RQ, which is the required expression of electric field intensity due to electric dipole at any arbitrary point. अब यहाँ पर जो पॉइंट लिया हुआ है हमने ना ही एक्सियल लाइन के ऊपर लिया हुआ है ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है वो किसी और जगह पर है, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, J1। ओके, क्लियर हो गया।